Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Suraya Shaheen and today I will teach you top 10 dystopian novels. In UGC NET examination, most of the time the question is asked from this point, top 10 dystopian novels. यानी कि ये जो टॉप 10 डायस्टोपियन नॉवेल्स है इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं, राइट। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायस्टोपियन नॉवेल्स से। कई बार जैसे मैच द कॉलम में आपको राइटर देते हैं, उनके वर्क देते हैं, उसमें मैच करना होता है। कई बार कैरेक्टर से भी पूछ देते हैं और कई बार तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको उसको पुट करना होता है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायस्टोपियन नॉवेल, और कई बार रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्टोपियन नॉवेल। इस तरह से क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछते हैं डायस्टोपियन नॉवेल से। तो लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज एक्चुअली डायस्टोपियन नॉवेल। अब डायस्टोपियन नॉवेल होता क्या है? एक्चुअली अ डायस्टोपियन नॉवेल डिस्क्राइब्स अ फिक्शनल सोसाइटी। अ डायस्टोपियन नॉवेल डिस्क्राइब्स अ फिक्शनल सोसाइटी वेयर लाइफ इज torturous, life is painful, life is in traumatic situation and it is at loss due to the extreme control through government, or we can say agency, technology and other destructive power. So that is called dystopian novel. It talks about a fictional society, a future society, right, where life is controlled through different agencies like government or the destructive power. अब मैं शुरू करती हूँ डायस्टोपियन टॉप 10 डायस्टोपियन नॉवेल कौन कौन से है, देन आई विल एक्सप्लेन इट। फर्स्ट इज जॉर्ज ऑरवेल्स 1984, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल्स का 1984 जो है वह डायस्टोपियन नॉवेल है और इट इज ऑरवेल्स 9th एंड फाइनल कंप्लीटेड नॉवेल। अब कई बार इस यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल completed book of George Orwell. So this is 1984 is the final completed book of George Orwell. So the story takes place in a fictional future in this novel, and the current year is uncertain but believed to be 1984. So this novel discusses about a totalitarian society ruled by the party and Big Brother who are constantly surveilling everyone. Winston Smith, a man who works for the party by altering historical records at the Ministry of Truth, secretly rebels by keeping a diary. थॉट क्राइम, यानी इसमें जो है इस नॉवेल में जो थीम है वह लव और लॉयल्टी है एंड totalitarianism and surveillance. These are the themes, and the novel is a warning against totalitarian governments that exert absolute control and power over their citizens through constant surveillance, propaganda and fear. So this is about George Orwell's 1984. You can read this novel. Next dystopian novel is Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, and this novel was published in 1985. This novel, The Handmaid's Tale, is a very important novel which everybody should study. This novel is set in the near future Republic of Gilead. You know, Gilead is the name of the place. The Handmaid's Tale is dystopian novel by Margaret Atwood about a totalitarian patriarchal state called Gilead, which has replaced the United States. So the story is narrated by Offred, यानी कि जो नरेटर है द हैंडमेड्स टेल में वो ऑफ्रेड है। ऑफ्रेड जो है वो नरेटर है हैंडमेड्स टेल में और वो इसमें अपने पेनफुल स्टोरी को वह बताती है, राइट। सो अ हैंडमेड here in this novel whose purpose is to bear the children for the ruling class, यानी कि इस नॉवल में जो हैंडमेड्स होते हैं उनका पर्पस होता है बच्चे पैदा करना, इसके लिए रूलिंग क्लास के लिए, बिकॉज ऑफ डेंजरसली लो रिप्रोडक्शन रेट्स।
Handmaids are assigned to bear children for elite couples that have trouble in conceiving pregnancies. So, in this society, fertile women are assigned to infertile commanders and their wives for ritualized sex in attempt to increase the birth rate. यानी हैंडमेड्स का है जो इसमें यूज किया जाता है किसके लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वह कम होता है वहाँ इनफर्टाइल वीमेन की वजह से, राइट. सो अफ्रेड जो होती है इसमें नरेटर होती है एंड शी हैज अ टॉर्चरस लाइफ. अफ्रेड इज फॉरबिडन टू रीड एंड और शी इज फॉरबिडन टू रीड और राइट एंड कैन ओनली लीव द हाउस फॉर carefully monitored shopping trips. So she lives in a constant fear of the secret police known as the eyes. So we have flashback in this novel throughout this novel. Offred's story is interspersed with flashbacks of her life before Gilead. यानी कि गिलीड आने से पहले उसकी लाइफ कैसी होती है उसका फ्लैशबैक भी इस नॉवेल में आपको देखने को मिलता है. सो हाउ शी स्पेंट हर लाइफ विथ हर हस्बैंड एंड हाउ शी वॉज डिपार्टेड, शी वॉज सेपरेटेड एंड हाउ शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर डॉटर. So and how she was captured. So about the themes, I can say that the themes are the dangers of totalitarianism and theocratic regimes, the suppression of women's rights and reproductive freedom. So the power of language, identity and memory in a world that tries to erase them. So this is all about Handmaid's Tale. Now the third dystopian novel is Doris Lessing's The Four-Gated City. द फोर गेटेड सिटी जो है डोरिस लेसिन का यह डायस्टोपियन नॉवेल है जो कि पब्लिश हुई थी 1969 में. सो द फोर गेटेड सिटी पब्लिश इन 1969 एंड इट इज द कंक्लूडिंग नॉवेल इन ब्रिटिश नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर डोरिस लेसिंग्स 5-volume सेमी ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस. यानी कि जो चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस है डोरिस लेसिंग का वह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज है जिसमें कि जो नॉवेल है द फोर गेटेड सिटी वह कंक्लूडिंग नॉवेल है इस नॉवेल से इस सीरीज में. अब इसमें जो है दिस नॉवेल रेफर्स टू साइंस फिक्शन and depicts a dystopian future following the destruction of Britain. So in an author's note, the writer Doris Lessing she writes that the four-gated city is what the Germans call a Bildungsroman, and about the protagonist and setting, that is the middle-aged Martha Quest. जो प्रोटैगनिस्ट है फोर-गेटेड सिटी में वो मार्था क्वेस्ट है and she moves to London becoming a secretary and housekeeper for the Coleridge family. Right now I talk about thematic points. It explores self-identity, mental balance, societal constraints and the failure to live by one's knowledge. So in essence the four-gated city blends realistic social commentary with visionary apocalyptic sci-fi showing Martha's journey as she witnesses and experiences a world aspiring toward disaster. So this is all about this novel. इसमें जो inner consciousness है उसमें एक्सप्लोर करने की बात की है उसने, और इसने राइटर ने ये भी बोला है अपने नोट में कि यह बिल्डंग्स रोमन है, जर्मन्स इसको बिल्डंग्स रोमन भी कहते हैं, राइट, इस नॉवेल को, द फोर गेटेड सिटी को. अब जो नेक्स्ट डायस्टोपियन नॉवेल है वह है ग्रेगरी Gilbert's V, W-E-V. This is the title of the novel and that is published in 1924, right? And V is a dystopian novel by Russian writer Yevgeny Zamyatin and that was written in 1920 to 1921 and it was first published as an English translation by Gregory Gilbert in 1924. So George Orwell said that Aldous Huxley's 1931 Brave New World must be partly derived from this novel V. यानी कि जो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि ऑल्डस हक्सली का जो एक और डायस्टोपियन नॉवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1931 वह इसी नॉवेल से लिया गया है, ऐसा उनका कहना है. एंड जो एनिमल फार्म है वह भी इंस्पायर है इसी नॉवेल से, ग्रेगरी जिलबर्ट की वी नॉवेल से इंस्पायर है, राइट.
अब नेक्स्ट डेस्टोपियन नॉवेल है वो है अल्डस हक्सलीज द ब्रेव न्यू वर्ल्ड. सो द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड डिराइव्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा द टेम्पेस्ट एंड एक्ट इज एक्ट 5 सीन 1. और कहाँ से लिया गया है, तो डायलॉग मिरेंडा के डायलॉग से, राइट. सो and when Mirinda says, "Oh, wonder how many goodly creatures are there here, how beauteous mankind is, oh brave new world." यानी कि द टेम्पेस्ट में मिरिंडा इस डायलॉग को बोलती है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. और यहाँ से जो है अल्डस हक्सली ने इसने टाइटल को अडेप्ट किया है शेक्सपियर के प्ले से. और आपको पता है कि ये मिरिंडा ये डायलॉग कब बोलती है, बिकॉज when she was first time at Ireland and she first time looks at Ferdinand who later on becomes her lover. पहली बार वह किसी हैंडसम इंसान को देखती है, पहली बार वह इतनी खूबसूरत दुनिया को देखती है आइलैंड पे आकर, तो उसके मुंह से एकाएक से निकलता है, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हेयर, हाउ ब्यूटीजियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. सो ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय अल्डस हक्सली portrays a futuristic world state where humanity is controlled through genetic engineering, psychological conditioning and mood-altering drugs to ensure happiness, stability and consumerism in individuality, family and live emotions. So the story centers on बर्नार्ड मैक्स. जो बर्नार्ड मैक्स होता है इस नॉवेल में, उसी के चारों तरफ ये नॉवेल घूमता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है इसमें. सो इन दिस नॉवेल कास्ट सिस्टम ऑपरेट्स वेयर ह्यूमंस आर डिसेंटेड इन हैट्रिस्ट एंड कंडीशंस इनटू अ 5 टायर्ड कास्ट. यानी कि इस नॉवेल में जो 5 कास्ट के बारे में भी बात किया गया है, दैट इज अल्फाज, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्लिसंस, राइट. और इसमें जो बर्नार्ड मैक्स जो होता है, ही इज एन अल्फा कास्ट एंड हु फील्स लाइक एन आउटसाइडर ड्यू टू हिज फिजिकल डिफरेंसेस एंड इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग, राइट, क्लियर. एंड अब नेक्स्ट डायस्टोपियन नॉवेल जो है वह है रे ब्रैडबरीज फ़ारेनहाइट 451. अब फ़ारेनहाइट 451 नॉवेल है एंड दैट इज पब्लिश्ड इन 1953. So this novel Fahrenheit 451 presents a future American society, and it presents a future American society where books have been outlawed and firemen. यानी कि इसमें बुक बर्निंग की बात हुई है, and that book burning was inspired from Nazi Germany and by ideological repression in the Soviet Union. So book burning can be an act of contempt for the book's contents or authors intended to draw wider public attention to this opposition or conceal the information contained in the text from being made public, such as diaries or लीगर्स. यानी कि जो इसमें बुक बर्निंग इसको रिफ्लेक्ट करता है कि यानी कि जो कंटेंट है, यानी जो बुक है उससे नफरत होना, उसके अथर से नफरत होना, उसके कंटेंट से नफरत होना, इन्फॉर्म को मतलब कि चुरा लेना, मतलब ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आए. सो इन सब चीज़ों को ये नॉवेल डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट डिस्टोपियन नॉवेल है वह काजू इशिगुरुस नेवर लेट मी गो, दैट इज पब्लिश्ड इन 2005. अब काजू इशिगुरुस का नॉवेल का नेवर लेट मी गो से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, कई बार पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टोपियन नॉवेल. उसमें एक ऑप्शन भी था नेवर लेट मी गो. नेक्स्ट डिस्टोपियन नॉवेल इज लुइस लॉरिस द गिवर, दैट इज पब्लिश्ड इन 1993. एंड नेक्स्ट डिस्टोपियन नॉवेल इज मंजुला पद्मभावन हार्वेस्ट. ये भी आपको पढ़ना है. एंड द 10th dystopian novel is Anthony Burgess's The Clockwork Orange. So these are the top dystopian novels. Thank you.